तक आपके साथ मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। असहिष्णुता के मुद्दे पर आमिर खान के बयान से सियासत से लेकर बॉलीवुड तक के मानो भूचाल आ गया है। आमिर खान ने ये कहा है कि उनकी पत्नी ने माहौल बिगड़ने पर देश छोड़ने तक की बात कही थी। देखिए आमिर खान ने क्या कहा और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ है। फिल्में ही नहीं, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट का ये विज्ञापन ही आमिर खान को बॉलीवुड के तमाम सितारों से एक अलग मकाम पर खड़ा करता है। जिम्मेदार और सामाजिक सरोकार से जुड़े गंभीर एक्टर की इमेज वाले आमिर खान अपने विज्ञापन में बेशक भारतीय तहजीब की आन बान शान के एम्बेसडर नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में आमिर को अब भारत सहनशील देश नजर नहीं आता। Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm, there's another part you feel depressed, you know, you feel low, you feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. आमिर दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में शामिल थे। उनसे देश में छिड़ी असहिष्णुता की बहस पर राय मांगी गई तो आमिर ने अपनी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव का हवाला देते हुए कहा कि हाँ, अब उन्हें भी फिक्र होने लगी है। राजा हिंदुस्तानी को अब हिंदुस्तान की फिजाओं में वो बात नजर नहीं आती जो पहले कभी उन्हें महसूस हुआ करती थी। A lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, you know, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And you know, it's for any society, it's very important to have a sense of security. आमिर खान कहते हैं कि देश में बुरे हालात पहले भी रहे, लेकिन किसी और बुरे दौर की दुहाई देकर, दूसरों की गलती गिनाकर कोई अपने गलत कामों से बच नहीं सकता। Where one political party, in this case the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make right what's happening now. And what happened in 84 was disastrous. You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens of the country. That's what we look for. Yeah. आमिर की ये बेबाक बातें एक ऐसे मुद्दे पर थी जिस पर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। ये बहस कला, साहित्य और सिनेमा से लेकर सियासत तक में चल रही है। ऐसे में आमिर खान ने देश के मौजूदा हालात पर सवाल उठाकर इस बहस को और गर्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो। असुरक्षा और सहनशीलता की कमी को लेकर पिछले कुछ समय से देश में छिड़ी बहस में शाहरुख खान और सलमान खान भी अपनी अपनी राय पहले ही जाहिर कर चुके हैं, लेकिन आमिर के बयान देते ही बॉलीवुड में हलचल मच गई। बॉलीवुड के सबसे डिफरेंट खान यानी आमिर ने जो सवाल उठाया है, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर जो फिक्र जताई है, वैसी ही फिक्र 2 हफ्ते पहले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी जता चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड की खान तिकड़ी के तीसरे खान यानी सलमान बाकी 2 खानों से इत्तेफाक नहीं रखते। आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। जो अनसेक्युलर आवाजें हैं,
वही हमारे देश को हम हमेशा बोलते रहते हैं देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं सबके सब बराबर हैं. My mother is Shushila Charak. My father is Salim Khan. My name is Salman Khan. Her name is Sonam Kapoor. यहाँ पर कौन बैठे हैं? हेलो. कोई फर्क पड़ता है सर? हाँ सलमान भाई. आपको कोई फर्क पड़ता है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं सर. हिंदुस्तानी है सबके सब. कद और स्टारडम में ये तीनों खान कमोबेश एक बराबर हैं और इनके बयानों से जाहिर है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर बॉलीवुड की राय पहले से बंटी हुई है. अब आमिर के बयान से इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी रखने वालों की भी लंबी कतार लग गई है. जब देश की सबसे सरगर्म बहस से आमिर जैसा संजीदा कलाकार जुड़ा तो बहस भी बड़ी हो गई. फिल्म एक्टर परेश रावल ने ट्वीट किया, अगर हम भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं तो उसे छोड़ने की बात कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अगर कुछ और मानते हैं. आमिर ने अब तक इसी भारत में काम करके स्टारडम और करोड़ों कमाए हैं. मशहूर एक्टर और एक्टिविस्ट अनुपम खेर ने भी आमिर के बयान से नाइत्तेफाकी जाहिर की है. अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, आमिर आपको भारत असहिष्णु लगता है तो भारत के 20 लाख लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? क्या वो भारत छोड़ दें या सरकार बदलने तक इंतजार करें? आमिर आपके लिए इनक्रेडिबल इंडिया, इंटॉलरेंस इंडिया कब से बन गया? क्या पिछले 7-8 महीनों में? अतिथि देवो भव. क्या आपने किरण से पूछा कि वो किस मुल्क में जाना चाहती है? क्या आपने उन्हें बताया कि भारत ने ही आपको आमिर खान बनाया है? फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने भी ट्वीट के जरिए आमिर को निशाने पर लिया है. आमिर खान, मैं खुले मंच से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किरण जी को भारत में ऐसा क्या असहिष्णु दिखा कि वो भारत छोड़कर जाना चाहती हैं? आमिर की बात से नाइत्तेफाकी रखने वालों का कहना है कि एक कलाकार तो सिर्फ कलाकार होता है और किसी भी एक्टर का स्टारडम उसके फैंस से होता है. फैंस सिर्फ चाहने वाले होते हैं, किसी भी मजहब से परे. ऐसे में आमिर खान या उनकी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव को ऐसा क्यों लगा कि भारत में सहनशीलता अब कम होने लगी है, जबकि आमिर की फिल्म को आज भी हर मजहब का दर्शक देख रहा है. आमिर के बयान का विरोध करने वालों का कहना है कि देश में होने वाली जिन घटनाओं को लेकर आमिर या शाहरुख ने सवाल उठाए हैं वो पूरे भारत की तहजीब नहीं बल्कि चंद लोगों की करतूत है और ऐसे लोग हर मजहब, हर समाज, हर मुल्क में हो सकते हैं. ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि जिस देश ने आमिर की ये शख्सियत बनाई है, अपने उसी भारत को अब शक की नजरों से क्यों देख रहे हैं आमिर खान? सवाल आमिर खान के नजरिए से सही या गलत होने का भी है. आज तक ब्यूरो. आमिर खान एक संजीदा कलाकार माने जाते हैं, लिहाजा उनके बयान की आंच सियासत तक पहुंच गई है. बीजेपी का ये कहना है कि आमिर ने भारत का अपमान किया है, तो वहीं कांग्रेस भी आमिर के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है. हालांकि केजरीवाल और एनसीपी को आमिर की बात सही लगती है. दादरी कांड, कलबुर्गी कांड, कालिक कांड. पिछले कुछ महीनों में देश में हुए ये 3 कांड ही असहिष्णुता पर उस बड़ी बहस की जड़ हैं, जिसमें अब आमिर खान का नाम भी जुड़ गया है. इन घटनाओं के विरोध में साहित्यकारों ने पुरस्कार लौटाना शुरू किया तो मानो होड़ सी लग गई. कई साहित्यकारों ने अवार्ड लौटाए तो कई कलाकार भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए आगे आए. हालांकि बीजेपी ने दादरी कांड सरीखी घटनाओं की निंदा की और अवार्ड लौटाने की परंपरा को सियासत से जोड़ा. बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर उनके राज में कुछ घटनाओं पर साहित्यकार इस तरह विरोध कर रहे हैं तो 1984 के सबसे बड़े दंगों के वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. लंबे अरसे से चल रही इस सियासी बहस के बीच जब आमिर खान ने चुप्पी तोड़ी तो 1984 के दंगों का जिक्र भी किया. Where one political party, in this case it's the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make right what's happening now. What happened in 84 was disastrous. You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens,
of the country. That's what we look for. Yeah. ये दलील तो वाजिब है कि दूसरे की कमीज काली बताकर खुद की कमीज उजली साबित नहीं की जा सकती, लेकिन आमिर पर सवाल उठाने वालों का तर्क है कि जिन हालात से आमिर कभी दो चार ही नहीं हुए, उन पर ऐसा सियासी बयान क्यों? वैसे इस मुद्दे पर सियासी रोटियां तो लंबे अरसे से सेकी जा रही हैं। यहाँ तक कि सियासी पंडित तो असहनशीलता पर इस बहस को ही बिहार में बीजेपी की शिकस्त का बड़ा कारण मानते हैं। ऐसे में जब आमिर ने इस बहस को नए सिरे से हवा दी तो सियासत भी शुरू हो गई। देश के अंदर अपनी पत्नी किरण राव का नाम लेकर आमिर खान ने जो कुछ कहा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, मगर सवाल यही है कि किरण फिल्मकार हैं, वो अपने दिल की बात बेहतर तरीके से पर्दे पर ट्वीट के जरिए या बयान देकर भी कह सकती थी। आखिर वो क्यों चुप रहीं और आमिर को क्यों बोलना पड़ा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए किरण राव की जिंदगी पर रोशनी डालते हैं। तब आमिर ने फिल्म सरफरोश में एक आईपीएस अफसर के रूप में देश के दुश्मनों से सावधान रहने की अपील की थी, और अब वो रियल लाइफ में कह रहे हैं कि देश में चैनो अमन खो रहा है। आमिर ने पत्नी किरण राव का नाम लेकर कहा कि उन्हें भारत में बनते बिगड़ते माहौल के बीच डर लग रहा है। आइए दिखाते हैं किरण राव का प्रोफाइल। किरण राव बॉलीवुड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर हैं। किरण मूल रूप से बेंगलोर की रहने वाली हैं। मुंबई के सोफिया कॉलेज और दिल्ली की जामिया मिलिया से ग्रेजुएट किरण 2001 से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। 2001 में फिल्म लगान से बॉलीवुड में एंट्री। फिल्म लगान में असिस्टेंट डायरेक्टर बनी। लगान की शूटिंग के दौरान आमिर खान से करीबी बढ़ी। 2002 में आमिर ने पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लिया। 2005 में किरण राव और आमिर खान ने शादी कर ली। 2011 में किरण ने फिल्म धोबी घाट का डायरेक्शन किया। किरण ने 5 दिसंबर 2011 को बेटे को जन्म दिया। किरण और आमिर के बेटे का नाम आजाद राव खान है। किरण राव देश के कई राज्यों में रह चुकी हैं। कर्नाटक में उनका जन्म हुआ, कोलकाता में उनका बचपन और स्कूल के दिन बीते। फिर दिल्ली और मुंबई में ग्रेजुएशन की। वो मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर चुकी हैं। कभी विवादों से उनका नाता नहीं रहा। बचपन से लेकर अब तक तमाम तरह के लोग और माहौल से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। किरण और आमिर दोनों अलग अलग मजहब से हैं। आमिर तलाकशुदा है, मगर दोनों के खिलाफ कहीं कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि ये उनका निजी फैसला था और अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए दोनों आजाद हैं। तो क्या यह माना जाए कि किरण राव को सच में भारत में डर लगने लगा है? और अगर हाँ, तो अब अचानक उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि आमिर को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी? क्या यह असहिष्णुता की बहस में शामिल होने का बहाना है या कुछ और? आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी